Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about the very interesting topic which is related to the electric current flowing in a conductor and the drift velocity of the free electrons. Okay, and as the point of view of the examinations, this article is very important, and the numericals based on this article also very important. Okay, so please see carefully this article because it is very helpful to understand the concept of the electric current flowing in the conductor. Okay, so today's article is nothing but relation between electric current and drift velocity of free electrons in a matter. Okay, and this article is very important. Okay, first of all, here we consider a metallic wire and the concept of this article is very interesting. Okay, so see carefully this video till last. Suppose we have a battery like this, and this terminal is positive and this terminal is negative. Okay, these are the connecting wires and this is the metallic wire. Since you know very well a metallic wire have large number of free electrons. ठीक है, तो जब हम इसे मेटलिक वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होगा कि इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन आपको पता है, निकाल सकते हैं टेस्ट चार्ज की हेल्प से। तो वो कैसे होगी आपकी, जस्ट टुवर्ड्स राइट। और आपको दूसरी डेफिनेशन भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आपकी होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इसके अंदर आपके पॉजिटिव आयंस भी होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बट जो पॉजिटिव आयंस है उनका मास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में बहुत लार्ज होगा। तो मास लार्ज होने के कारण जो उनमें एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्मॉलर दैन टू द एक्सीलेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन. So we can neglect the motion of the ions in the case of the metals. Okay, that means we can say that the current flows in the conducting wire only on due to the free electrons. Okay, and the contribution of the positive ions to flow the currents is negligible. Okay, so suppose here this is an electron moves towards left like this. Okay, and you know very well about the velocity of the free electrons when you connect the wire to a battery
then all the electrons moves with a constant average velocity from lower potential to higher potential, whose value is approximately about to the 4.2 about 10 to the power minus 4 meter per second approximately. Okay, now suppose this is nothing but Vd. Okay, and the direction of the drift velocity of the all electrons is in the same direction, which is just opposite to the electric field. Okay, and now we want to calculate the electric current. Okay, so some electrons goes from like this, from this end to this end. Okay, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे मूव करेंगे जिसके कारण इसमें एक आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी, आई फ्लो करेगी। सपोज ये करंट आपकी कितनी है, आई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशंस। ठीक है ना, तो ये कंफर्म हुआ। आपको यहाँ पर रिलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी रिलेट करेंगे। सबसे पहले कंसिडर करते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ दिस वायर। सपोज लेंथ ऑफ दिस वायर इज स्मॉल एन एल। ओके, नाउ first of all we will calculate electric current. Okay, to calculate electric current we have requirement of electric charge. Since you know very well electric current is nothing but the rate of flow of electric charge, that is I equals to Q by T. देखिए यहाँ पर if you want to find out electric current, then for this we have to find out the electric charge flowed by the wire from the wire in time t. ठीक है ना, तो देखिए कैसे रिलेट करना है। आपको यदि आई फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्यू कैलकुलेट करना होगा और टी भी कैलकुलेट करना होगा। दैट मीन्स टी टाइम में आपका कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से इधर आपका फ्लो किया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी फॉर्म में फ्लो कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो यदि आप ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो आपका टी टाइम में चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के अमाउंट आपको नोन है। अब कैसे करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। देखिए ड्राइव करना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि इस एंड से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है ऐसे, और इस एंड पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। क्लियर है ना। सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से निकला और इस एंड तक पहुंचने में इसने जो टाइम लिया वो कितना टाइम लिया, सपोज कर लेते हैं इसने टी टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लिया। क्लियर है ना। हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है ये टी टाइम में कहाँ से कहाँ पहुँचता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। क्लियर है ना। तो आप बताइए जब इस पॉइंट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से टी टाइम में यहाँ पर पहुँचेगा तो उतने टाइम में इससे जो आगे के इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे इस वायर में, क्योंकि टाइम कब स्टार्ट होगा, 0 टाइम से स्टार्ट होगा, तो ये कब यहाँ पर पहुँचेगा, जब इसके सामने के सारे इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएंगे। बात समझ आई ना। तो टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर प्रेजेंट सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर, और जो इसके आगे के सभी है वे ऐसे मूव करके आपके क्या जाएंगे, इस स्पेस को जो खाली हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से एंटर करके पुनः क्या कर देंगे, अगेन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। दैट मीन्स यदि हम इस इलेक्ट्रॉन की टी टाइम की बात करें तो इस टी टाइम में इस वायर में प्रेजेंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स अपना एक कंप्लीट राउंड कर लेंगे।
अपना एक राउंड क्या कर लेंगे, कंप्लीट। तो यहाँ से चलकर जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस फेस के यहाँ पर आएंगे, तो उस कंडीशन में जो आगे के सभी इलेक्ट्रॉन्स में घूमकर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। दैट मीन्स इस टाइम t में सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस वायर में प्रेजेंट हैं वो अपनी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है ना। तो हम इस टाइम को कंसीडर करेंगे, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आपकी क्या एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, l। तो इसकी एवरेज यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट मीन्स l बाय t। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गई। तो कंसिडर कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। Let us consider a wire, a conducting wire of length small l and क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बात करेंगे, इन द वायर इज स्मॉल एन। ये नॉन होता है, ये क्या होता है, नॉन होता है, स्मॉल एन। देन ठीक है ना। Then since volume of the wire is, क्या होगा वॉल्यूम इसका बताइए, ये सिलेंड्रिकल टाइप है, दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट इज a इंटू l, al is the volume, and the number of free electrons per unit volume is small n, number of small n. So the number of free electrons in the wire, only free electrons, capital N equals to N into A into L, number of free electron per unit volume and multiply by volume. Okay, so after that, this suppose this is equation. If any one electron, any one free electron takes time t to reach from, suppose this point is A and this is B, from and B to and A of the wire, then drift velocity of the three electrons क्या हो जाएगी, Vd इक्वल्स टू L बाय T, इक्वेशन नंबर
ये एवरेज वेलोसिटी हुई। कैसे एवरेज वेलोसिटी? आप देखिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके ना, तो एवरेज हुई ना। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड, नाउ since this electron takes small t time to reach from here to here, so all the electrons will be cross this cross sectional area of the wire, ठीक है ना। चलिए, so in this time all free electrons present in the wire will cross the and A, so that is number of free electrons free electrons in time, number of free electrons that complete your its path in time t, कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना, या ऐसा कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यही हो जाएंगे आपके। सो द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोड इन टाइम t across the वायर, तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू N इंटू E, विच इज नथिंग बट N इज NaL इंटू E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इट्स टेक टाइम T, सो इलेक्ट्रिक करंट विल बी, सो इलेक्ट्रिक करंट flowing in the wire will be I equals to T by definition of electric current, but Q is nothing but I equals to NaL into E, NaLE divided by T. This can be written as NaE multiplied by L by T. From equation second, this is nothing but drift velocity NaE into Vd. This can be written as in a proper way NEA Vd. This is the required relation between electric current and drift velocity. See this formula here. N is the number of free electrons per unit volume, which is always fixed for a given metal. E is the charge on a electron, which is always fixed. A is the cross sectional area and Vd is the drift velocity. That means the electric current depends on the property of the metal and the cross sectional area of the wire and also drift velocity of the free electron. तो यहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके वायर का होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में आपकी फ्लो करेगी। दैट मीन्स उसमें उतना ही कम आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस होगा उस वायर का। तो वायर की लेंथ
जो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इलेक्ट्रिक वायर का जितना ज़्यादा होगा उस वायर का रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कम होगा तभी आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, लार्ज होगी फॉर ए गिवन वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। वो टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को रिलेट करने की कोशिश करेंगे एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Okay, continue this topic also. If asked in the exams like this, also we will continue in same way. First of all, we find out the expression for electric current, and after that we will find out the expression for the electric current density. ठीक है ना। तो चलिए, if the electric current density is small j। देखिए यहाँ पर एक बात आपको इम्पोर्टेंट नोट करनी है कि हमने जो यहाँ पर वायर लिया है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिया है, और यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपका वायर होगा तो उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होगी वो हर पॉइंट पर आपकी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हमने डेफिनेशन में कराया था वो पॉइंट डिपेंडेंट होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख रहा हूँ द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज़ स्मॉल जे। ठीक है ना। अदरवाइज ये किसी पॉइंट पर डिफाइन होती है, तो यहाँ पर एवरीवेयर यही होगी, तो इसलिए लिख दिया गया है एंड जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। क्लियर है ना। तो नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लेना है ये वाला। चलिए, एंड आई इज नथिंग बट एन ई ए वी डी अपॉन ए, दैट इज एन ई वी डी। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है वो ओनली ऑन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, चाहे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये n है ये भी आपके मेटल की अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी है, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी थी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन की एक अपनी प्रॉपर्टी है, जो इस मैटर की क्या होगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट है। और जो वीडी है ये किसकी वेलोसिटी है, ये आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है, और ये भी आपकी मेटल की एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स जे जो है आपका किसी मेटेरियल की एक इंट्रिंसिक क्या है, प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर बनती है। ठीक है ना। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे ट्राई करिएगा समझने की। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन आस्क करके करिएगा। इसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ड्राइव करेंगे जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर ही बेस्ड होगा, ओम्स लॉ और कुछ डेफिनेशंस आपके रिलेटेड होगी, इससे उन्हें डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।